Yes, ma'am, it is visible. ठीक है, this we have done. We have done euthanasia yesterday, correct? Yes, ma'am. Now we'll just go to Helsinki, okay? Helsinki declaration में like what exactly is happened here. So whenever they were doing some research, then what are the important roles and responsibilities while focusing on the research? Because here in the medical industry, people or the doctors or the medical practitioners, when they do the research, they will have to deal with a lot of criticalities, because obviously the research which they are doing is related to drugs, the medicines, the problems, the diseases. So testing and everything needs to be done on the sometime life of people. Okay. Then they were also focusing on some combination of drugs, combination of some medicines which can cure further diseases. तो उससे क्या होता है कि क्या क्या उसका ह्यूमन इम्पैक्ट आएगा, राइट? उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्लिगेशंस है, उन सबको फॉर्मुलेट करने के लिए आपका हेल्सिंकी बनना है, ठीक है? सो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर कोई रिसर्च के बाद किसी भी आउटपुट से या रिसर्च करते हुए किसी भी ह्यूमन पे या किसी की लाइफ पे या आपके एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें पहले से ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं अगर होगा ऐसा, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, देन इट कैन लीड टू लॉट ऑफ इश्यूज और मे बी इट कैन हार्म द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, ठीक है? तो जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आपके क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, रिसर्चेस होती हैं, उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो आपका हेल्सिंकी ने फॉर्मुलेट किया था, ठीक है? समझ में आ रहा है तनवीर? Yes, ma'am. Okay, so declaration provided the guidance for physicians who were conducting clinical research and focused on researchers' roles and responsibilities when it comes to protecting human subjects. ये जो 3 वर्ड लाइनें है ना, ये मोटा मोटा बता रही है कि क्या गाइडेंस मतलब क्या रोल्स होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कैसे उनको फोकस करना चाहिए व्हाइल डूइंग द रिसर्च। ये आपका हेलेंस्की डिक्लेरेशन में फॉर्मुलेट हुआ, ठीक है? उसके प्रिंसिपल्स क्या है? जो उसके डॉक्यूमेंट है उसमें was created to set a balance between the interest of humanity and individual patients who are part of clinical trials. So इसके जो basic part है वो है in respect for individuals, right to make informed decision and recognition of vulnerable groups and more. Means क्या बोल रहे हैं आपके ये तीन चीजों में क्या समझ में आ रहा है? तनवीर आप बताओ। Like they should respect every individual. Like their dignity should not be harmed while doing the tests or trials. Also, it should right to make informed decisions. Like their consent should be taken before conducting any trials, and recognition of vulnerable groups. Those who are susceptible to the to these drugs or any disease or who are vulnerable, so they should also be recognized. और जो भी डिसीजंस हैं पहले से, जो जहाँ पे पता रहना है वहां पे इंफॉर्मेशन पहले से ही सर्कुलेट होनी चाहिए, राइट? सो देयर शुड बी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, लाइक व्हाटएवर प्रेडिक्टेबल आउटपुट और डिसीजंस आर देयर which is to be taken while doing the research, and that has to be communicated, informed, ठीक है? Clear? Yes, ma'am. अच्छा, और उसका अगर ये पूछते हैं आपसे कि कितने प्रिंसिपल्स हैं इसके, तो 10 प्रिंसिपल्स हैं
जो पहले न्यूरमबर्ग कोड इन एथिक्स में आ गए हैं, और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा, जो स्टेटमेंट ऑफ फिजिशियन एथिकल ड्यूटीज हम लोगों ने कल किया था ना, Yes, ma'am. राइट, कल हमने पढ़ा था ना। हाँ, हाँ, तो ये उसमें उसके मोटे मोटे उन लोगों ने 10 प्रिंसिपल्स डाले हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, इनफैक्ट उसमें आगे बढ़ा भी जाएगा, हम पढ़ रहे हैं अभी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेडिकल लॉ में क्या होता है। रणवीर पढ़ोगे ये, कमिटिंग एडल्ट्री और इम्प्रॉपर। professional misconduct. What is professional misconduct in medical law? Committing adultery or improper conduct with a patient or maintaining an improper association with a patient by abusing one's professional position. Conviction by a court for offences including moral, repetitive, So or committing criminal acts. improper conduct with a patient or maintaining an improper association with a patient by abusing one's professional position, means abusing professional position का क्या मतलब है यहाँ पे। मतलब प्रोफेशनल पावर का abuse करना, गलत फायदा उठाना, या गलत फायदा, मिस गाइड करना, या फिर कम गाइड करना, गाइड ना करना, राइट, या फिर किसी की जो भी मेडिकल इशू है उसको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करने के जो प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो इश्यूज हैं उस पे ध्यान ना देना, राइट, या किसी की बीमारी को सीरियसली ट्रीट नहीं करना, राइट, ये सारी हाँ, चीजें आपकी प्रोफेशनल पोजीशन की अब्यूज कहलाता है मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। yes, also किसी के प्राइवेसी को हार्म करना, हाँ, किसी का डायलिसिस कोई कुछ हार्म हुआ है, या जिसमें ये डायलिसिस करा ही नहीं है, प्रॉपर नेग्लिजेंस हुआ है, वो सारा हमारा उसमें आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको पढ़ना एक बार, इसको पढ़ो पूरे को फटाफट से, रीड इट आउट लाउड फॉर मी। committing adultery or improper conduct or maintaining an improper association with a patient constitute professional misconduct. Registered medical practitioners are required to issue certificates, notification, report, and other documents of similar character for subsequent use in courts or administrative purposes. Right. So, what we are trying to say here, Tanveer? Adultery or improper conduct. तनवीर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। Is it clear now, ma'am? हाँ, क्लियर ना। Now tell me. Yes, तनवीर। हेलो। Yes, ma'am. हाँ, ये ठीक से समझ नहीं आ रहा है. अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई कहीं भी कोई मिसकंडक्ट होता है, राइट, या कोई इम्प्रॉपर एसोसिएशन दिखता है पेशेंट का, पेशेंट से डॉक्टर्स का, या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिखता है, तो जितने भी अगर कोई मिसकंडक्ट रजिस्टर हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला so and so doctor have not treated me well as per the procedure or as per the regular practice, right, या उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन दी जो मुझे लगता नहीं है कि देनी चाहिए थी, या मुझे ये नहीं दी उन्होंने, या मुझे कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला, उस केस में देखो, registered medical practitioners are required to issue certificate, notification, report, and other documents of similar character for subsequent use in court or administrative purposes. Means
जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मेरे को सो एंड सो ड्रग्स या मुझे स्टीरॉइड्स दिए गए, मुझे जो जो मुझे नहीं देने चाहिए थे, देन जिस डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉइड रिकमेंड किया, ही हैज टू प्रिपेयर द पेपर्स एंड ही विल हैव टू show the instances or the practice which has happened in the past for the same sort of issue or the disease in the eyes of the court or in the eyes of the administrative counselor, so that they can show that why so and so practice has taken place. Okay, so they have to prove that what हाँ, they have done is for the best interest of the for the patient. best interest of the human or for the best interest of the patient. ठीक है, तो वहां कहीं कोई गैप आता है, कोई मिसकंडक्ट होता है, तो इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, अभी क्या हो रहा है कि केमिस्ट के पास जब लोग इवन छोटी सी मेडिसिन भी लेने जाते हैं, तो वो आपसे वो मांगता है Prescription. प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं देते। पहले क्या होता था, नॉर्मल मेडिसिन आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती थी, बट नाउ द प्रैक्टिस इज नॉट देयर, राइट? व्हाई? बिकॉज उनको मालूम है कि अभी जो कोर्ट का या इवन जो लॉ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है, उसके हिसाब से अगर हम विदाउट उसके देंगे तो आपके पास कोई सपोर्टिंग नहीं रहेगा कल को कुछ भी अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो डिसिप्लिनरी कंट्रोल क्या है। ठीक है, व्हाट इज डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल? So state medical council have the disciplinary control over the medical practitioners. They have the power to remove the names of medical practitioners permanently or for a specific period from their registers when after due inquiry they are found to have been guilty of serious professional misconduct. वो बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उनको दिखता है या प्रूव हो जाता है, तो इनका नाम, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का नाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की लिस्ट से परमानेंटली या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकाला जा सकता है उस इंक्वायरी के गिल्टी प्रूव हो जाने के बाद। ठीक है, Okay. अगर कोई सीरियस इलनेस या कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस प्रूव हो जाते हैं तो फिर उनका नाम इंडियन मेडिकल काउंसिल से निकाला जा सकता है। ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल के हिसाब से उनका नाम जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की लिस्ट से निकाला जा सकता है। अब ये स्टेट का था, अभी आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में। ये थोड़ा सा हमारा ना लेंदी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से चीजें आती हैं। दूसरा, ये अभी उसके अकॉर्डिंग मतलब फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है आपके जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, एक्रेडिटेशन वगैरह के, जब भी किसी हॉस्पिटल में या इसमें जब भी इस तरह के ऑडिट्स होते हैं, चेक्स होते हैं, तो ये सारी चीजें वहाँ पे आपसे अप्लाई होती हैं। तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसमें क्या बोला है, पहला हमारा दे रहे हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। देखो क्या उसमें प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, एटिकेट्स और एथिक्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस, वो सारे इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सो दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. देन इसके बाद ये बोल रहे मतलब बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो रेगुलेशन होते हैं, वो इस 2002 के रेगुलेशंस में क्या प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, एथिक्स क्या फॉलो होने चाहिए, और वो पब्लिकेशन में जब जब से उनका नाम पब्लिकेशन में आ जाएगा, ये सारे क्या क्या उसके रेगुलेशंस में आ जाने चाहिए या एनफोर्स हो जाने चाहिए, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है हमारा कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। इसको पढ़ेंगे एक बार, ये आया भी हुआ एग्जाम में। Code of medical ethics. Declaration
Each applicant at the time of making an application for registration under the provisions of the Act shall be provided a copy of the declaration and shall submit a duly signed declaration as provided in Appendix 1. The applicant shall also certify that he or she had read and agreed to abide by the same. हाँ, मतलब जब वो उनको जब जब डिग्री अलॉट होगी, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर की या एक हॉस्पिटल की, जो भी मतलब प्रोफेशनल कंडक्ट की, मेडिकल प्रोफेशनल कंडक्ट की डिग्री अलॉट होती है या उनको लाइसेंस मिलता है, तब उनको ये डिक्लेरेशन भी देना होता है इस अपेंडिक्स के दौरान कि उसने, उस पर्सन ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लिया है और उसको वो एग्री भी करेगा एज पर द अपेंडिक्स 1। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, इवन कोई प्रोसीजर करने से पहले कंसेंट लेते हैं ना, पेशेंट से कंसेंट लेते हैं या उसके अटेंडेंट से कंसेंट लेते हैं, या ओथ लेते हो आप अपनी ये प्रैक्टिस करने से पहले, तो इसी तरह से कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स की डिक्लेरेशन भी देनी होती है ये मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. अब ये दी हुई है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फिजिशियन इन जनरल, मतलब जनरली उसके पास क्या फिजिशियंस की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बताई हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है कैरेक्टर ऑफ फिजिशियन, मतलब बोले डॉक्टर्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीबीएस और एमबीबीएस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और विद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी मेडिकल डिसिप्लिन, जो ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जनरल फिजिशियन के अंदर। अब वो बोल रहे हैं कि फिजिशियन शेल अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ हिज प्रोफेशन, ऑब्वियसली कि अपने प्रोफेशन की डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन करना है। दूसरा, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इज टू रेंडर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मतलब ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर प्रोफेशनल इंटरेस्ट को रखना है, पेशेंट को इंटरेस्ट को रखना है, राइट। तो प्राइम ऑब्जेक्ट जो है मेडिकल प्रोफेशन का है वो इज टू रेंडर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, रिवॉर्ड और फाइनेंशियल गेन इज अ सबऑर्डिनेट कंसिडरेशन, ये हमने कल पढ़ा था। तनवीर, क्या क्या समझा था इसके अंदर हमने? Yes, ma'am. Like पेशेंट के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा और किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन के चक्कर में किसी तरह से कोई हाँ गाइड नहीं करना है, राइट, पढ़ा था हाँ हमने? मिसगाइड नहीं करना। हाँ, और उसी के साथ साथ he shall keep himself pure in character, diligent in care of the sick and in caring for the sick people, और मॉडेस्ट रहना चाहिए, सोबर रहना चाहिए, पेशेंट के साथ एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए उसकी, और उसके साथ ड्यू डिलिजेंस पूरा फॉलो होना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जैसे जो भी उसके प्रोसीजर्स के प्रॉपर स्टेप्स हैं वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए, तो ये भी एक प्राइम ऑब्जेक्ट है मेडिकल का, जेनरिक में है हमारे पास। दूसरा, another point is no person other than a doctor having qualification recognized by Medical Council of India and registered with Medical Council of India is allowed to practice modern system of the medicine or surgery. A person obtaining qualification in any other system of medicine is not allowed to practice modern system of medicine in any form. क्या बोल रहे हैं ये? कह रहे हैं कि जो हाँ बताओ, आप बताओ। The मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और रेस या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल वहां से जो डिग्री मिलते हैं उसके अलावा मतलब कोई मतलब वहां से जो डिग्री मिलते हैं उसके अलावा कोई भी और प्रैक्टिस नहीं कर सकता कोई या फिर सर, कोई सर्जरी नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये भी एक आपका जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। दूसरा, But ma'am, normally तो we see that there are a lot of quack doctors who वो uh, एज आप अगर आप ओटी में देखोगे, ओटी में जो बाकी सब लोग होते हैं वो असिस्ट करने के लिए होते हैं, ऑपरेट करने के लिए नहीं, करेक्ट yes ma'am. है ना? तो दे आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट, दे आर अलाउड टू असिस्ट। Yeah, but in rural areas, रूरल एरियाज में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं तनवीर जो नहीं होनी चाहिए, yes ma'am. है ना? दैट वे जस्ट मोमेंट ना।
Tanvir, give me 5 minutes, okay? Give me 5 Okay, minutes. ma'am. ठीक है. Then membership in medical society. So maintaining good medical practice is something the same that we have done. I mean, hello, Tanvir, you there? Yes, ma'am. Acha. ठीक है. So next is like maintaining good medical practice is almost same. Like they have to render service to humanity and then keep a full respect for dignity of profession and people, right? And there should not be any wrong practices or benefits, so that would come under maintaining good medical practice. Then this one, membership in medical society. It's for the advancement of his profession. A physician should affiliate with other associations and societies. Then medical professionals involve activity in the functioning of such bodies. So it's like here that what the other related affiliation should be there. Or I mean, if that can be done, or if it is required as per the regulation, that should be done for the benefit of the society, for maintaining the society, maintaining medical in the membership in the medical society. Okay, so the next would be so then we have physician should also be participating in the professional meetings, which is constituting medical education programs like for at least 30 hours every 5 years, organized by reputed professional academic bodies. So here what we are saying is that a physician or a medical practitioner should also be attending some of the educational programs for at least 30 hours for every 5 years. मतलब हर 5 साल के बाद उनको 30 घंटे की कम से कम कोई ना कोई ट्रेनिंग या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अटेंड करना पड़ता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कोड ऑफ कंडक्ट. फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स जितने हैं वो उसकी प्रैक्टिस के लिए वो भी मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट? पर्टेनिंग टू हिज इंडोर पेशेंट्स फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 3 years. ये तो आपको पता भी होगा शायद, क्योंकि ये आप लोग अभी हॉस्पिटल्स में हो, राइट? यू वर्किंग देयर. तनवीर? Yes. हाँ,
मेडिकल रिकॉर्ड्स का आपको मालूम है कि 3 साल तक मेंटेन करने होते हैं? Yeah, absolutely. हाँ, क्यों करते हैं? Uh, Mostly because of if there is an MLC and also. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ऑडिट्स वगैरह के थ्रू, जैसे हॉस्पिटल के ऑडिट्स होते हैं ना, तो फर्स्ट 3 इयर्स के उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन में कई बार जैसे उनसे कोई रिकॉर्ड मांग लिया जाता है, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर उनको अपना वो रिकॉर्ड शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे तो जो भी आपके ऑथराइज लीगल अथॉरिटीज हैं, उनको आपको जब भी रिक्वायर्ड होगा या जब भी आस्क होगी उसकी, तो आपको उसको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शिल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट इश्यूज। मतलब जो भी उसके पास क्वालिफिकेशन है उसका पूरा उन सर्टिफिकेट्स का पूरा डिटेल उनको मार्क करके रखना पड़ेगा, बना के देख मतलब मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज पर द अपेंडिक्स 2 ऑफ इंडियन मेडिकल एक्ट। ठीक है, फिर जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको उनको एफर्ट डालने पड़ेंगे टू मेक इट टू डिजिटलाइज वन, मतलब उसका EMR. कंप्यूटराइज करने के लिए, हाँ, ताकि कभी भी उसको रिट्रीव करना पड़े, वापस से लेके आना पड़े, दिखाना पड़े, प्रेजेंट करना पड़े, तो दैट यू कैन डू। ठीक है, देन डिस्प्ले ऑफ, Electronic medical record. सॉरी, This is called electronic medical record. हाँ, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। देन डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ये तो आपको ही मालूम ही होगा कि मेडिकल काउंसिल एक्ट सेंट्रल और स्टेट दोनों के हिसाब से आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के वहां लगा होता है, राइट? Yes, ma'am. Prescription में certificates में. हाँ, वो आपको शो करना होगा, पब्लिसाइज करना पड़ेगा। Then physicians shall display us as suffix to their names only recognized medical degrees or such certificate, diplomas and membership honors which confer professional knowledge or recognize any exemplary qualification achievements। वो कह रहे हैं कि उसके साथ साथ जब वो अपना वो प्रेजेंट करते हैं सर्टिफिकेट, उसमें अगर कोई और डिग्रीज या वो डिप्लोमास दे रहे हैं तो वो उसी की प्रोफेशनल नॉलेज को और एनहांस करते हुए या रिकॉग्नाइज करते हुए, कोई भी अगर इसके पास एग्जाम्पलरी क्वालिफिकेशन है वो उसी का दिखाएंगे। कुछ एडिशनल वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो उससे रिलेटेड नहीं है या कंफर्मेशन नहीं देते हैं इस चीज के कि हाँ नॉलेज और एनहांस्ड है, वो डॉक्टर्स नहीं दिखा सकते। ठीक है, मतलब डिस्प्ले नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जो जो भी प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स देते हैं, है ना, उसके जो भी जेनरिक नेम्स है उसको ही मेंशन करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए मोर रिलेटेड टू अ रैशनल प्रिस्क्रिप्शन बने, ताकि दूसरे कभी भी किसी को कहीं से कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है उसको, ड्रग्स को जब वो फिजिशियन उसके पास, सॉरी, केमिस्ट के पास जाएंगे तो दे शुड गेट द ड्रग्स इजीली, है ना। तो इसके लिए ये भी गाइड किया जाता है कि इजी से इजी, कॉमन से कॉमन नेम्स यूज किए जाएं। ठीक है, हाईएस्ट Yes. क्वालिटी इंश्योरेंस इन पेशेंट केयर, मतलब हर पेशेंट को ये, हर फिजिशियन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसको अटमोस्ट केयर के साथ सेफ गार्ड किया जा रहा है। उसके जो भी उसको एडमिशन मिल रहा है, जो भी उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी पेशेंट केयर के लिए, वो वहाँ पे उसकी क्वालिटी चेक्स वगैरह सब इन प्लेस है और उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ही दिया जा रहा है। ठीक है, Okay. कोई भी अगर कोई अनएथिकल कंडक्ट है, जो फिजिशियन को लग रहा है कि कोई अनएथिकल कंडक्ट हुआ है या एक्सपोजर हुआ है, अनएथिकल बिहेवियर है या कोई एक्टिविटी हुई है विच इज नॉट करेक्ट, फिजिशियन हैज टू एक्सपोज दैट, हैज टू इन्फॉर्म, बिना किसी फियर और फेवर के। वो या तो जो भी मतलब उसको फर्दर एक्शन है, या उसके अटेंडीज को बताना या पुलिस को बताना या हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना, वो फिजिशियन को इमीडिएटली कर लेना चाहिए इफ ही finds any sort of misconduct happened with the patient. Then payment of professional services. So physicians engaged in the practice of medicine shall give priority to the interest of patient. The personal financial interest of a physician should not be conflict with the medical interest of patient. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि भाई
जब भी आपका फी की बात होती है तो यहाँ पे किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन लेने की कोशिश, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल गेन लेने की कोशिश ना करें। यहाँ पर जो भी फी है उनकी वो प्रॉपरली, मतलब जो भी एक्शन आपने लिया है, जो भी ट्रीटमेंट दिया है, उसी के लिए वो पेमेंट लिया जाए। देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल practices or anything should happen as per the non requirement of the steps. ठीक है। देन इवेजन ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन, ये बोल रहे हैं कि आप जिस भी कंट्री में हो ना, उस कंट्री के जो भी लॉ है मेडिकल प्रैक्टिस को, ठीक है, उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। मतलब फिजिशियन को हमेशा ऑब्जर्व करने चाहिए कि उस कंट्री में क्या लॉज चल रहे हैं, उस वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, राइट। और कोऑपरेटिव होने चाहिए वो इस इन सारे लॉज वगैरह को रेगुलेट कराने के लिए, जो भी उनके प्रोविजंस हैं उन सबको रेगुलेट करवाने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री में। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिजिशियन शुड ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट्स लाइक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948। ये ना अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं एनवायरमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। उन सब के जो भी रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं स्टेट सेंट्रल के, उसको प्रॉपरली पढ़ के और उसको फॉलो करना है, बाइट करना है, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं फॉर द लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, ताकि कल को कुछ भी वो मतलब रॉन्ग प्रैक्टिस ना कर ले, या कल को कुछ ऐसा स्टेप ना कर ले जो उनको पता ही नहीं है कि हो गया उनसे, और उसके बदले में फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ फिजिशियंस टू देयर पेशेंट, वो तो हम लोगों ने जेनरिक जो भी उनको रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं, ड्यूटीज फॉलो करनी है, वो हमने पढ़ी है। अब पेशेंट के लिए क्या है, पहले पहले है ऑब्लिगेशंस टू द सिक। क्या होता है इसमें, एक बार बताओ मुझे थोड़ा सा। मतलब अगर कोई पेशेंट इंजर्ड हो या इमरजेंसी में हो तो डॉक्टर को बेसिक ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। देन ही कैन ऑप्ट फॉर लाइक वो ट्रीटमेंट करेंगे या हम्म, और एंड ऑल्सो देन अगर मतलब पेशेंट को जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है डॉक्टर के मतलब उनके रेंज के बाहर होता है तो ही हैज टू मतलब वो उनको दूसरे डॉक्टर को रेफर करना पड़ेगा या फिर ट्रीटमेंट रिफ्यूज करना पड़ेगा। हाँ राइट। और अदरवाइज अगर जो उसके पास मतलब इफ इज इन द फील्ड एंड द रीच ऑफ अ पेशेंट, देन सॉरी डॉक्टर, देन डॉक्टर शुड बी फॉलोइंग द प्रोसीजर्स बाय प्रोवाइडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, बाय प्रोवाइडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये तो ऑब्लिगेशन सिक के लिए हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल प्रैक्टिशन है, अगर कोई इनकैपेसिटी है, ठीक है, तो वहां पे उनको प्रैक्टिस नहीं करना है, रेफर कर देना है आगे, या इन्फॉर्म कर देना है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर जो भी पेशेंट्स की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, दैट शुड बी विद द डॉक्टर, दैट शुड नॉट बी पब्लिसाइज और दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज एज पर द रेगुलेशंस एंड द लॉज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस। ये क्या है, प्रोग्नोसिस का क्या मतलब है? मतलब पेशेंट के जो कंडीशन है वो उसको बढ़ा चढ़ा के या कम करके नहीं कह सकते। एग्जैक्टली मतलब जितना जो है उसको क्वांटिफाई करके उसको सब्जेक्ट में डाल के, या उसको उसका लेआउट तैयार करके डॉक्टर को पेशेंट को देना चाहिए, ना कि उसको एग्जैजरेट करना है, ना ही उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कराना है, ना ही उसको मिनिमाइज करना है उसकी उसका इश्यू जो है, मतलब उसका जो प्रॉब्लम है उसकी क्या ग्रेविटी है, वो पेशेंट की एक्चुअल क्या कंडीशन है, वो उसको डॉक्टर पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट्स को प्रॉपर बताना है। मतलब डॉक्टर और फिजिशियन should not over or underestimate the condition of the patient। ठीक है। then the patient must not be neglected, of course इसमें क्या है, अगर कोई इशू है, कोई इमरजेंसी है, फटाफट से उसको असेस करना है। और जैसे पता चलता है इशू जो भी, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो उसको बताना है। और किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द पेशेंट शुड नॉट बी देयर बाय द डॉक्टर। एंगेजमेंट फॉर एन ऑब्स्ट्रिक केस क्या मतलब है?
क्या मतलब है? मतलब इन केस इन टर्म्स ऑफ ऑब्स्टेटिक केस, अगर एक मतलब जो फिजिशियन जिनको करना चाहिए था वो हम्म। डिलीवरी, लेकिन कोई और किसी अगर वो एब्सेंट हो और कोई और प्रोफेशनल मतलब फिजिशियन आ जाता है, तो उनको पेशेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर एनी हम्म। प्रोसीजर। और ये जो ऑब्स्टेट्रिक ये कौन सी फील्ड होती है बेसिकली? ये आपका ये गायनेकोलॉजी जो या मिडवाइफरी और ये बेबी बर्थ वगैरह से रिलेटेड होते हैं ना। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल किसी और ने डिलीवरी ले ली फॉर एग्जांपल, तो वहाँ कंसेंट नहीं लगा कि आगे के लिए मैं ही करूंगा, आप पुराने वाले के साथ एंगेज नहीं होगा, इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अच्छा, उसके बाद आती है ड्यूटीज ऑफ फिजिशियंस इन कंसल्टेशन। अननेसेसरी कंसल्टेशंस नहीं होने चाहिए, मतलब वही हमने जो कल बात करी थी कि अननेसेसरी उसको विजिट कराना और फीस लेना है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस लेना, वो सब नहीं होने चाहिए। ठीक है। देन अगर जो लैब रिक्वायरमेंट है जुडिशियसली वो होने चाहिए रूटीन मैनर में, अगर नहीं है तो अननेसेसरी के इस तरह के टेस्ट और इन सब चीजों के लिए नहीं भेजना चाहिए पेशेंट को। कोई भी कोई भी उनको कंसल्टेशन जब आप दे रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही है, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ द डॉक्टर ऑफ द फिजिशियन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द कंसल्टेशन। ठीक है। कंसल्टेशन में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, जिस टाइम पर मतलब जरूरत है उस टाइम पे उसको कंसल्टेशन मिलनी चाहिए। देन जो भी स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली तैयार करके डॉक्टर्स को प्रेजेंट हो जाने चाहिए थ्रू दी फिजिशियंस। और जो भी उसको मेडिकल अटेंडेंट रहे उसके पास वो डिस्क्लोजर मिलना चाहिए ओपिनियन का, मतलब जो भी आपका डॉक्टर्स का ओपिनियन है वो उनको डिस्क्लोज कर देना चाहिए पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव्स को, जो भी उसकी इशू है, जो भी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। कह रहे हैं कि differences of opinion should not be diverged unnecessarily, but there is irreversible difference of opinion in the circumstances should be frankly and impartially explained to the patient or his relatives or friends. It would be open to them to seek further advice as desire or as they do desire। मतलब कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिफरेंट ओपिनियंस नहीं इन्वॉल्व करने हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर को। लेकिन अगर जैसे आपने डॉक्टर्स ने आप पेशेंट को बता दिया कि सो एंड सो कंडीशन है, अगर आप सेकंड ओपिनियन के लिए किसी के पास जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो एज पर योर डिजायर। ठीक है, आप मल्टीपल डॉक्टर्स को नहीं इन्वॉल्व करोगे, ये एक रूल है अगेन। ठीक है। ओके। ट्रीटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन कह रहे हैं कि कंसल्टेशन के बाद जो ट्रीटमेंट दोगे आप उसमें कोई डिसीजन लेने लेने के लिए, कोई भी चेंजेस लेने के लिए कोई चीज आपको रोकनी नहीं चाहिए। मतलब एज एंड व्हेन अगर कोई चेंज करना है या कोई मेडिसिन चेंज करनी है या आप कुछ नई चीज को करवाना चाहते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसीजर, वो आपको इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी एनीथिंग व्हिच शुड स्टॉप यू, रिस्ट्रेन यू फ्रॉम अटेंडिंग दी और मेकिंग द एनी वेरिएशंस इन योर ट्रीटमेंट। ठीक है। ओके। फिर अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ इशू है ऐसा जो बहुत डेलिकेट है एंड विच नीड्स एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, देन यू हैव टू रेफर द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट। ठीक है। यस मैम। फीस और दूसरे चार्जेस में अपनी फीस वगैरह पहले से डिस्क्लोज करनी चाहिए, और जो भी आपका आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इन योर दिस थिंग, इन योर प्रिस्क्रिप्शन पेपर एंड वॉट एवर ट्रीटमेंट यू आर गिविंग दैट हैज टू बी मेंशन देयर, और उसके हिसाब से उसकी फीस चार्ज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे फिजिशियन शैल राइट हिज नेम एंड डेजिग्नेशन इन फुल along with registration particulars in his prescription letter head note। पता है ना ये तो? यस मैम। ठीक है। और ये तो हो गया प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे पेशेंट लोड बहुत हैवी होता है, द नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर मस्ट बी रिटन बिलो हिज सिग्नेचर। खाली वो अपना साइन डाल के नाम लिख दे, बहुत है। ठीक है। अब दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिशियंस टू ईच अदर।
एक दूसरे मतलब एक दूसरे फिजिशियंस की एक दूसरे के लिए क्या नॉलेज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। पहली बहुत सिंपल सी बात है, डिपेंडेंस ऑफ फिजिशियंस ऑन ईच अदर। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मेरी फैमिली से अगर कोई आपके पास आया है, आप डॉक्टर हो और मेरी फैमिली से कोई आपके पास, आप उसको नॉर्मली ट्रीट करोगे, इक्वली ट्रीट करोगे एज अ पेशेंट। और मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको इक्वली ट्रीट करूंगा एज अ पेशेंट, बेस्ड ऑन माय माय फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन और माय फील्ड ऑफ नॉलेज। दूसरा, कंडक्ट इन कंसल्टेशन, कोई राइवलरी, कोई एनवे नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द पीपल, इन टर्म्स ऑफ गिविंग द कंसल्टेशंस, राइट। और अगर कुछ एक दूसरे के पेशेंट्स भी आ रहे हैं तो उसको भी वो इक्वली और रैशनली ही टेक केयर करें, रैशनली ट्रीट करें, ठीक है। Then consultant not to take charge of the case. When a physician has been called for consultation, the consultant should normally not take charge of the case, especially on the solicitation of the patient or friends. So the consultant shall not criticize the रेफरिंग फिजिशियन। ये क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल, मैं मेरा हॉस्पिटल है या मेरा क्लिनिक है, वहां पे मैं आपको कंसल्टेशन के लिए बुला रही हूँ, तो आप मेरे डॉक्टर्स के साथ किसी तरह, सॉरी, आप मेरे पेशेंट्स के साथ किसी तरह का कोई रॉन्ग कम्युनिकेशन या नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करोगे मेरे हॉस्पिटल या मेरे लिए, ठीक है। क्लियर है? Yes. क्योंकि उससे क्या होगा, उससे राइवलरी फैलती है और उसमें नेगेटिविटी फैलती है पूरे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, है ना, एक दूसरे के साथ इस तरह से, क्योंकि सब एक दूसरे के पेशेंट को तोड़ेंगे, Yes, ma'am. है ना। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं नहीं हूँ, मेरी इमरजेंसी हो गई है, तो मैं नहीं हूँ और मैंने अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म किया है या मैंने दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है टू लुक आफ्टर द केस और द पेशेंट रेफर्ड बाय मी, या आप मेरी उस पे उतनी कैपेसिटी के साथ आप मेरे हॉस्पिटल में विजिट कर लो इन ऑर्डर टू ट्रीट और डील विद द पेशेंट, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं उसका केस नहीं लूंगा, मेरे पेशेंट्स वो ज्यादा ले लेता है, या इस तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो हमें मालूम है कि ये सब चीजें नेटवर्क और कम्युनिकेशन पे ही होती हैं, एक दूसरे के चैनल्स में ही होती है, सब किसके साथ ज्यादा जेलिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उनके साथ ही अपना बिजनेस और रिलेशन बढ़ाते हैं। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री कैसी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सामने वाले का नॉलेज अगर ज्यादा अच्छा है तो वी ट्राई टू गेट कनेक्टेड एंड रेफर आवर पेशेंट टू देम, ठीक है। हम्म। उसके बाद विजिटिंग अनदर फिजिशियंस केस। सॉरी, वो बोल रहे हैं कि जब भी आप वो करते हैं, विजिट करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं फिजिशियन के केस को, तो जहाँ उनको जब कोई बीमारी या किसी तरह का कोई कुछ प्रॉब्लम इलनेस समझ में आती है, उसको फौरन ही अपने फिजिशियन को जो उसको अटेंड करें उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि सो एंड सो प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स में भी आप देखोगे ना, जो जो फिजिशियंस होते हैं वो जो स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, तो स्पेशलिस्ट उसमें वो डायग्नोस करके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के फिर वापस फिजिशियन को रेफर करते हैं। देखा है ना आपने ये प्रोसीजर, Yes. है ना। तो And वो doctor's हाँ, progress note में लिख देते हैं इसको। एग्जैक्टली, तो वो ये आपका इस कंसल्टेशन रूल के हिसाब से प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आता है ड्यूटीज ऑफ फिजिशियंस टू द पब्लिक एंड टू द पैरामेडिकल प्रोफेशन। ये आप फटाफट से इसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हम्म। फिजिशियंस एज सिटीजन, क्या ड्यूटीज होगी आपके हिसाब से फिजिशियंस के एज अ सिटीजन? मैं वही जो पहले पढ़ा था and also like कि safe practice and हाँ, करेक्ट, तो कह रहे जो कि अ, बोलो बोलो। मेडिकल एथिक्स जो है वो मेंटेन रहे। रहे, और अगर कुछ एडवाइस करना है पब्लिक हेल्थ इश्यूज पे तो वो होना चाहिए। Yes, ma'am. लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी मेडिकल प्रोफेशन के प्रोसीजर है उसको एनफोर्स करना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए होनी चाहिए, तो दैट इज Yes, आल्सो वन ऑफ द ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ द फिजिशियन। देन yes. And पब्लिक sometimes, कम्युनिटी। हाँ। yeah, sometimes we see that doctors come on TV to warn us about certain diseases or like heart attacks and हम्म,
they give us Correct. tips. हाँ, that should be there. And then अब अगर ऐसे ही आपका ये जैसे आपने बोला है ना कि जैसे पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ के हिसाब से भी यही है कि जैसे कोई अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज कहीं लग रही है आपको, फैल सकती है या फैलने वाली है, या उसके कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो वो इन्फॉर्म करना रेगुलेटरी को ड्यूटी, वो भी ड्यूटी रहती है आपकी फिजिशियंस की। देन फार्मासिस्ट और नर्सेस, इसका क्या रहेगा बताओ? फिजिशियंस को हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए दूसरे रिलेटेड प्रोफेशन जो है आपके मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि पैरामेडिकल सर्विसेज है, फार्मेसी है, मतलब पैरामेडिकल के अंदर आपका फार्मेसी है, नर्सिंग है, इन सब प्रोफेशंस को भी सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोफेशन भी आपके मेडिकल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने फिजिकल फिजिशियंस हैं उनको इस चीज को भी रिकॉग्नाइज और प्रमोट करना चाहिए, इन प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो फिजिशियंस को नहीं करने चाहिए? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग। Advertising. वो कह रहे हैं कि अपने नाम का ना किसी तरह से रॉन्ग एडवर्टीजमेंट्स नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को। मतलब जैसे कोई क्रिटिकल इश्यूज है या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, उस पे अगर वो काम, अभी वो उस पे काम कर रहे हैं, तो उसको उसमें किसी का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या डॉक्टर्स या पेशेंट्स के लिए या इस तरह का कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जो उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट है। ठीक है। उसको मतलब Okay. उसका वो मेडिकल, जैसे डॉक्टर्स भी अपना एडवर्टीजमेंट अगर आप देखोगे ना, आपने टीवी पे देखा एक पर्टिकुलर डॉक्टर का कभी एडवर्टीजमेंट आता है? रेडियो में आता है कि सो एंड सो डॉक्टर इज फेमस फॉर सो एंड सो स्पेशलिटी, ऐसा कभी सुना है आपने? No, ma'am. Hospital का आता है, लेकिन doctors से हॉस्पिटल का आता है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आता है, बट नॉट एज अ प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि वो अगर अपना कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स या फिजिशियंस कोई अनाउंसमेंट वैसे प्रेस में करना चाहते हैं, तो वो ये सब कर सकते हैं कि वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका अगर कोई एड्रेस चेंज हुआ है या उनकी जगह पे कोई ड्यूटी कोई और करेगा, प्रॉक्सी लग रही है तो वो प्रॉक्सी कौन होगा, कोई दूसरा प्रैक्टिस यूज करने जा रहे हैं, कोई कोई दूसरी दूसरी तरह का प्रोसीजर वो तैयार करने जा रहे हैं, या किसी तरह का कोई फीस चेंजेस या प्राइस चेंजेस आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं, तो इसके ऊपर छोटा मोटा वो कर सकते हैं प्रेस रिलीज, बट दे कैन नॉट डू द एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट टू कमर्शियलाइज देयर बिजनेस और टू कमर्शियलाइज देयर प्रैक्टिस। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि रिबेट्स एंड कमीशन, कि यहाँ पे फिजिशियंस को कभी भी किसी तरह का कोई ऑफर्स या गिफ्ट्स या इस तरह की बोनस वोनस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी सर्विसेज के बदले में। ठीक है। ये सब चीजें अनएथिकल कहलाती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। Then provisions of para 6.41 shall apply with equal force to the referring, recommending, or procuring by a physician or any person, specimen or material, diagnostic purposes or other study work. So nothing in this section, however, shall prohibit payment of salaries by a qualified physician to other duly qualified person rendering medical care under his supervision. वो कह रहे हैं कि इस particular para के अंदर अगर आपके पास कोई जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या इक्वली क्वालिफाइड जो आपके पास ड्यूली क्वालिफाइड पीपल हैं जो आपकी प्रैक्टिस में आपको आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी और उनके जो भी कॉम्पोजिशन है वो ऑन टाइम डिसबर्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई रोक नहीं होना चाहिए। देन सीक्रेट रेमेडीज, जहाँ पे कॉम्पोजिशन ना पता हो फिजिशियन को या कोई टेस्टिंग वाला वो है, तो वो किसी तरह का वो पेशेंट को रिकमेंडेशन वहां से नहीं होने चाहिए इस तरह के कॉम्पोजिशन की, जहाँ पे इनको ना पता हो, जहाँ पे डॉक्टर्स को कुछ श्योर नहीं है। ठीक है। देन फिजिशियंस को ह्यूमन राइट्स में अगर हम देखा जाए तो किसी तरह की जहाँ पे मेडिकल ट्रॉमा निकल के आता है, फिजिकल ट्रॉमा से रिलेटेड उस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसी तरह का टॉर्चर या किसी तरह की वायलेशन हो रहा होगा ह्यूमन राइट्स का, उस चीज में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट डॉक्टर्स का नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। देन यूथेनेशिया,
यूथेनेशिया वैसे तो हमने बात करी थी कि एक्टिव वाला तो पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी occasion में अगर कोई वो अप्लाई हो रहा है पैसिव वाला, तो उसमें प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर प्रोसीजर्स और वो सब चीजें फॉलो होनी चाहिए। तो ये लिखा है ना, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स शैल डिक्लेयर विड्रॉल ऑफ सपोर्ट सिस्टम, सच टीम शैल कंसिस्ट ऑफ द डॉक्टर इन चार्ज ऑफ द पेशेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ हॉस्पिटल एंड अ डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय in charge of the hospital from the hospital staff or in accordance with the provisions of the Transplantation of Human Organ Act 1994। ये पूरी टीम वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए जब यूथेनेशिया प्रैक्टिस में आ रहा है। Okay. ठीक है, क्लियर? Yes. उसके बाद ये वही सब सेम है, बाकी वायलेशन नहीं, किसी चीज का वायलेशन, इम्प्रॉपर कंडक्ट का वायलेशन, इम्प्रॉपर कंडक्ट नहीं होना चाहिए। कोई ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है तो वो आपका वायलेशन में, मतलब वायलेशन ऑफ रेगुलेशंस में आता है कि आप इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहे हो तो आप वायलेट कर रहे हो रेगुलेशंस को, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। 72 आवर्स में प्रेजेंट करना मेडिकल रिकॉर्ड्स को। देन इम्प्रॉपर कंडक्ट, एडल्ट्री इम्प्रॉपर कंडक्ट नहीं होना चाहिए, किस तरह का मिसबिहेव या अब्यूसिव पोजीशन नहीं होनी चाहिए, किस तरह का अब्यूसिव या इम्प्रॉपर कंडक्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट के साथ, एज पर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, राइट। Yeah. अगर कोई इमोरल या इस तरह के कोई एक्ट होते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से वो उसमें जो आपका मिसकंडक्ट के जो भी रेपिकर्शन होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो एज पर लॉ आप पे अप्लाई हो जाते हैं। फिर सेक्स डेट्रीमेंशियल टेस्ट जो है वो नहीं है अलाउड है इंडिया में, ये भी आपको मालूम ही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। Yes. लेकिन अब यूएस में लीगल है। हाँ, यूएस में है लीगल, यूरोप में भी है। उसके बाद जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप देते हो पेशेंट को, वो प्रॉपर्ली साइंड होने चाहिए, प्रॉपर उस पे सिग्नेचर्स होने चाहिए, जो भी आप लोगों ने उसको, या स्टैम्प जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, जिसमें जब भी आप अपना रिपोर्ट या मेडिकल आउटपुट देते हो या फिर मेडिकल कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है आपका, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को शेल नॉट कॉन्ट्रवीन द प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रेगुलेशंस मेड अंडर। इसमें बता रहे हैं कि जो भी आपकी कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए जो ड्रग्स वगैरह एक्ट है, उसमें क्या क्या चीजें आपको नहीं फॉलो करनी है या फॉलो करनी है, कि स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए जब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको शेड्यूल ड्रग्स को ही, या जो भी आपके रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं उसी को आपने सेल करना है ना। और आपको कोई भी एक्सक्लूसिव या फिर कोई एक्सेप्टेंस या फिर कोई अननेसेसरी का ड्रग्स या पॉइजन जो है वो पब्लिक को या फिर पेशेंट को नहीं रिकमेंड करना है। तो ये बहुत सारे बेसिक्स ही हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, बट उसको यू हैव टू जस्ट राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, जो ये वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि कल हमारी एक हमारी क्लास अभी और बची है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग उसमें पढ़ लेंगे, और साथ में हम लोगों ने पेपर्स और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी खत्म कर लेने हैं। तो हम प्रोबेबली कल वाली क्लास में इसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, देखो मोरलेस हम लोगों ने जो जो पढ़ा है ना उसी को ही लिखा गया है, बट थोड़ा सा ना राइटिंग स्किल्स आ जाएंगे आपके पास ये सारे अलग अलग वे में पढ़ने से। जब आपका Okay. एग्जाम होगा तो यू विल हैव गुड मटेरियल टू राइट, ठीक है। Yes. ठीक है, लेकिन आप इसको एक बार और सेल्फ पढ़ोगे ना तो यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन योर पेपर, ठीक है। Okay मैम। ठीक है, तनवीर, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी सेंड मी द क्वेश्चन पेपर्स, करेक्ट? Yes. ठीक है, तो विल डिस्कस दैट। हाँ, कल भी हम लोग वही 7। अच्छा, एक बात बताओ, हम क्या पहले कर सकते हैं क्या कल क्लास? It will be fine for me, but I think Nancy won't be नैन्सी, home. नैन्सी कब फ्री हो जाती है? I think 7 p.m. around 7 p.m. अच्छा। Because right now I'm not training anywhere, so but she is. तो एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं, कल अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम संडे में करेंगे, ठीक है। Okay. चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, ma'am.